मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश में नासा का परसिवियरेंस रोवर मार्स पर पहुंच चुका है। यूं तो नासा ने इससे पहले भी कई रोवर मंगल पर उतारे हैं, परंतु परसिवियरेंस रोवर उन सभी से अलग और ज़्यादा शक्तिशाली है। आज मैं आपको दो ऐसे वीडियोज़ दिखाने वाला हूं जो परसिवियरेंस रोवर ने भेजा है, और ये वीडियोज आज से पहले हम पृथ्वी वासियों ने कभी नहीं देखी थी। पहला वीडियो होगा उस समय का जब नासा का रोवर मार्स पर लैंड करने जा रहा था, और दूसरे वीडियो में पहली बार आप मंगल ग्रह की अमेजिंग सरफेस यानी सतह को देखेंगे। इन दो वीडियोज के अलावा मैं आपको एक ऑडियो भी सुनाऊंगा जो कि नासा ने जारी किया है, और इस ऑडियो को सुनने के बाद आप महसूस कर पाओगे कि वाकई में हम मंगल के कितने करीब आ चुके हैं कि वहां चलने वाले स्टॉर्म्स की आवाज़ भी हम अब धरती पर बैठे बैठे सुन सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सब के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ होती है केवल ज्ञान की बातें, आपकी एग्जाम की बातें सटीकता के साथ। वर्ष 2019 में जब भारत के चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया, तब मन ही मन हम सभी देशवासी यह जानना चाहते थे कि आखिर वैज्ञानिक पृथ्वी से बाहर किसी सरफेस पर रोवर को लैंड कैसे कराते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय तक इवन नासा के पास एंट्री डिसेंट लैंडिंग यानी ईडीएल की रियल टाइम वीडियो नहीं थी। आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि परसिवियरेंस रोवर में 19 कैमरे लगे हैं। इसके अलावा नासा ने 4 और कैमरे एंट्री डिसेंट और लैंडिंग हार्डवेयर में फिट किए थे, जिसके कारण हमें पहली बार एंट्री डिसेंट लैंडिंग यानी ईडीएल की वीडियो देखने को मिला है। ईडीएल को सरल भाषा में कहूँ तो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब परसिवियरेंस रोवर ने मंगल के एटमॉस्फेयर में पहली बार प्रवेश किया, नीचे आया और उसने अल्टीमेटली मार्स के सरफेस को टच डाउन किया। चलिए बिना देर किए अब हम उस वीडियो को देखते हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया है। We are starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. पैराशूट खुल चुका है। The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. हीट शील्ड अलग हुआ और परसिवियरेंस का स्पीड अब सबसोनिक हो चुका है। Perseverance is now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. अब रडार और कैमरा मार्स की सतह को पहली बार देख रहे हैं। अभी आप मंगल की सरफेस को देख रहे हैं जब परसिवियरेंस लैंड करने वाला था। Nav filter converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface of Mars. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. LVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have priming of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN Safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. ये लैंडिंग से कुछ क्षण पहले की तस्वीर है।
SkyCrane maneuver has started. About 20 meters off the surface. मार्स की डस्ट के कारण विजिबिलिटी यहाँ पर लो है, पर आगे मैं आपको सरफेस की पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ। We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. वाकई ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, जिसे आज से पहले हम मानवों ने केवल अपनी कल्पनाओं में देखा था, परंतु ये हमारे हौसलों की शक्ति है जिसने मार्स को आज हमारे इतने करीब ला दिया है। और मेरा यकीन मानिए, आज से कुछ दशकों बाद ही हम किसी इंसान को मार्स की सतह पर चलते हुए देखेंगे और हमारा ये सपना भी साकार होगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों की हरकतों को देखकर ऊपर वाले को भी लगता होगा कि उन्होंने क्यों इस सृष्टि में होमो सैपियंस यानी हम इंसानों का निर्माण किया। एक पृथ्वी हमें रहने के लिए अलॉट किया गया था, पर उसे पूरी तरीके से तबाह करने के बाद अब हमें मंगल पर बसना है। और फिर मंगल पर जाकर भी हम कहाँ मानने वाले हैं? उसके बाद हम टाइटन पर लैंडिंग की तैयारी करेंगे। आइसक्रीम खाने की चाहत में रेफ्रिजरेटर बनाकर पहले ही हम ओजोन में छेद कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के जरिए इस पृथ्वी को ओवन बना दिया है, पर हम अभी भी कहाँ रुकने का नाम ले रहे हैं। मार्स पर हम सुनहरे भविष्य की तभी कामना कर सकते हैं जब पृथ्वी पर हमारा वर्तमान सुरक्षित हो जाए। गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये मार्स के सरफेस की दशकों पुरानी तस्वीर है, जिसे तत्कालीन वैज्ञानिकों ने प्राप्त इंफॉर्मेशन के आधार पर अपनी हाथों से कलर करके तैयार किया था। और तब ये भी एक ऐतिहासिक पल था। तब किसने सोचा होगा कि वर्ष 2021 में हम मार्स के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि वहां चलने वाली हवाओं की आवाज भी हम पृथ्वी से सुन सकेंगे। मंगल की सतह पर लैंड करने के बाद परसिवियरेंस ने हजारों पिक्चर्स भेजे हैं। नासा उन्हें अभी भी एनालाइज कर रहा है, परंतु कुछ पिक्चर्स को इंटीग्रेट करके एक पैनोरामा तैयार किया गया है। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि आखिर कैसा दिखता है मंगल का सरफेस। इन तस्वीरों को देखकर एक समय के लिए आप भी ऐसा महसूस करेंगे कि दूर होकर भी मंगल कितना हमारे पृथ्वी जैसा जाना पहचाना सा है। आगे मैं आप सभी को एक ऑडियो सुनाने जा रहा हूं। ये ऑडियो भी ऐतिहासिक है। इस ऑडियो को खुद परसिवियरेंस रोवर ने अपने माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया है और इस ऑडियो को नासा ने जारी किया है। ये ऑडियो इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इसके जरिए पहली बार हम मंगल की सतह पर होने वाली आवाज़ों को धरती पर बैठे सुन रहे हैं। इस बात से तो हम सभी अवगत हैं कि मार्स के सतह पर न गाय है न भैंस है, तो इन जानवरों की आवाज़ें तो हमें वहाँ से नहीं सुनाई देने वाली। और भगवान की कृपा से मार्स अब तक आतंकवादियों और दंगाइयों के चंगुल से बचा हुआ है, इसीलिए वहाँ के सतह से हमें किसी मासूम की चित्कार की आवाज़ें भी सुनने को नहीं मिलने वाली। तो मंगल पर हमें कैसी आवाज़ें सुनने को मिलेगी? इसका सरल उत्तर है कि मंगल की सतह पर चलने वाली तेज आंधियों को हम सुन सकेंगे। जब परसिवियरेंस रोवर जीवन की खोज में मार्स के पत्थरों में छेद करेगा तो उन पत्थरों से निकलने वाली आवाज़ों को हम धरती से सुन सकेंगे। आइए अब हम मंगल से आने वाली पहली ऑडियो को सुनते हैं, जो हमें मार्स की सतह पर बहने वाली तेज हवाओं की धमक का एहसास दिलाता है। So that gentle whirl that happens in the background, that is a noise made by the rover. But yes, what you did hear 10 seconds in was an actual wind gust on the surface of Mars, picked up by the microphone